So in this so hello friends, in this video we will discuss next topic, and that is your passing structure to a function. Now, as you know, we can pass some variables, or these variables are sometimes called temporary variables, or you can call it as a arguments. We can pass these arguments to a normal functions. So is it possible to pass the structure to a function? That means we are talking about not the directly the structure, we are talking about the structure variable. So how we can pass the structure variable to function? So this topic we will discuss today, which is most important topic as point of your gate exam, as point of your engineering exam, and as point of your net exam. So let us we move on to this topic, and we discuss this topic by seeing the practical example in VS Code. Okay, so let us we start with this topic, passing structure to a function. Like an ordinary variable, a structure variable can also be passed to a function. How we can pass? We may either pass individual structure elements. That means if we have made a structure and we have the number of elements, like suppose if I am going to make a structure like student, and in the students I am taking the three elements. The first element is name, second is roll number, third one is marks. So we can pass the individual structure elements as well as the entire structure. We can pass the entire structure variable at one go, we can pass. So that is called passing structure to a function. नाउ लेट अस बी सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि अगर हम इसको पास करना चाहते हैं स्ट्रक्चर को, तो कैसे कर सकते हैं. वी हैव द टू वेज, दो वे हैं. एक तो क्या है, आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को पास करो, या फिर पूरा पूरा स्ट्रक्चर वेरिएबल को पास कर दे. कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिक्लेयर ए मेन फंक्शन. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड वी आर गोइंग टू डिस्कस, पासिंग इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स. So this is the main function. In this main function we are making a structure struct book, and then we are taking here the three elements: character name, then character author, and then integer call number. Now what we need to do, we just need to make here the variable here. Now you can see that there is some error in this case of defining structure. We have not mentioned here the terminator. Yes, so यहाँ पे आपका टर्मिनेटर आएगा तभी ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, अदरवाइज इट विल गिव यू एरर. सो यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया बुक नाम का, जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं: नेम, ऑथर एंड कॉल नंबर. नाउ वी आर गोइंग टू मेक द वेरिएबल्स. हाउ वी कैन मेक द वेरिएबल? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक हेयर द user defined type, and the user defined type is struct book. Then the variable name b1 equal to, then we are going to pass the name of the book. So this is name of the book, let us see. Then author we are going to pass ypk. Then we are going to pass the call number, that is your 101. Now these variable b1, we can pass it directly to the function, or either we can pass these elements of the b1 one by one. How we can do that? First of all we need to call the function. So this is the display function, एंड जनरली जो फंक्शन कॉलिंग होती है मेन फंक्शन के अंदर होती है. तो हम यहाँ पे डिस्प्ले नाम का फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं. तो वी आर पासिंग हियर द इंडिविजुअल एलिमेंट्स. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, b1 डॉट नेम वी आर पासिंग, b1 डॉट ऑथर वी आर पासिंग, b1 डॉट कॉल नंबर वी आर पासिंग. Now when we are going to talk about this b1 dot name, that means we are passing the base address of the character array. So automatically क्या करेगा, base address of the character array लेगा. That means it will start with the L. In this case it will start with the L, and in this case it will start with the capital Y. Now this is your display function, and in this display function, as you know, we are going to pass an array. So यहाँ पे जब भी हम एरे के कॉरस्पॉन्डिंग जब भी हम पास करते हैं, तो हु विल कंटेन दैट मीन्स पहले तो ये समझने की जरूरत है, जब हम b1 डॉट नेम पास कर रहे हैं, एक एलिमेंट को पास कर रहे हैं, तो एक एलिमेंट जो है वो किस टाइप का है, एक करेक्टर एरे का है. दिस इज योर करेक्टर एरे. तो इस करेक्टर एरे के कॉरस्पॉन्डिंग जब हम कोई भी एरे का नाम पास करते हैं, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू पास हेयर द बेस एड्रेस ऑफ द करेक्टर एरे. तो जब हम बेस एड्रेस पास करते हैं, जब भी हम एड्रेस को पास करते हैं, तो यहाँ पे उस एड्रेस को कौन कंटेन करता है, हु विल कंटेन द, दैट विल बी कंटेन बाय द पॉइंटर वेरिएबल.
अगर आपको पॉइंटर वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हो कि पॉइंटर वेरिएबल्स क्या होते हैं, एंड एक बड़ा अच्छी सीरीज़ बनाई हुई है जहाँ पे आप पॉइंटर्स के बारे में बहुत अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो। और प्रैक्टिकली एक एक पॉइंटर्स का हमने प्रोग्राम भी करके देखा है, तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू टू गो फॉर दीज वीडियोज एंड चेक दैट हाउ वी कैन डिक्लेयर द पॉइंटर वेरिएबल, व्हाट इज पॉइंटर वेरिएबल। सो पॉइंटर वेरिएबल होता क्या है, आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट इट। पॉइंटर वेरिएबल इज स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल विच कंटेन द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। तो एक तरह से यहाँ पे b1 डॉट नेम क्या एक वेरिएबल है, और इसका एड्रेस कौन कंटेन करेगा, एक अनदर वेरिएबल। सो वी आर मेकिंग है द पॉइंटर वेरिएबल ऑफ द टाइप करेक्टर। तो यहाँ पे हम किस टाइप का पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं, करेक्टर टाइप का। दिस इज करेक्टर, दिस इज योर स्टार एस। सो जब b1 डॉट नेम पास करेंगे, दैट मीन्स वी आर पासिंग द बेस एड्रेस ऑफ द करेक्टर एरे नेम एज वेल एज ऑथर। तो यहाँ पे बेस एड्रेस किस में पास हो जाएगा, दैट विल बी कॉपी टू द your that will be contained by the pointer variable s. Similarly, that author base address will be contained by the pointer t, and then this call number is of integer type, so we are passing it directly, so it will directly copy to the variable n, and with the help of printer statement we are just going to print this s, t and n. तो जब हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल प्रिंट लेट अस सी, देन इट विल प्रिंट ypk एंड देन इट विल प्रिंट 101। सो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम था जहाँ पे हमने देखा कि हाउ वी कैन पास द स्ट्रक्चर टू ए फंक्शन बाय पासिंग इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। हम कैसे इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स के थ्रू हम पास कर सकते हैं। Now come to this one next method, the passing the entire structure variable. तो passing the entire structure variable means हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एलिमेंट बाय एलिमेंट किया था, अब हम क्या करेंगे, पूरा पूरा वेरिएबल पास करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वी नीड टू क्रिएट हियर द स्ट्रक्ट बुक। तो अब हमने यहाँ पे, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेन फंक्शन के ऊपर हम क्या बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो एक तरह से क्या बन गया, दैट बिकम्स अ ग्लोबल स्ट्रक्चर। So this becomes the global structure. This is struct book. We have taken the 3 elements, same element लिए, एक तो name, second is author, and third one is call number. Now we are going to take the main function. So in this main function we are going to make the variable struct book is the data type, then b1 is the book name, and we are passing here the default values for the structure variable b1. तो यहाँ पे लेट अस सी yk एंड देन 101, एंड वी आर गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन, एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर वेरिएबल हम पास कर रहे हैं b1। तो यहाँ पे b1 डायरेक्टली पास होगा। जब हम b1 को पास करेंगे तो यहाँ पे अब देखो आप, यहाँ पे b1 क्या है, एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, उसको कौन कंटेन कर सकता है। जब हम यहाँ पे पास करते हैं b1 तो इसे बोलते हैं एक्चुअल आर्गूमेंट्स, दैट इज कॉल्ड actual arguments. Now who will contain this actual arguments value, that will be contained by the temporary arguments, or you can call it as a formal argument. So जब भी हम बात करते हैं फंक्शन कॉलिंग की तो हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं, एक तो आता है हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर्स और एक्चुअल आर्गूमेंट्स। जब भी हम मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करते हैं तो जब हम फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पे जो भी हम पास करते हैं उसे बोलते हैं हम एक्चुअल आर्गूमेंट्स। और जो ये जो इसकी कॉपी, जब फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन जब कॉल होगा तो यहाँ पे कॉल होगा, तो यहाँ पे b1 की कॉपी कहाँ पास होगी, कॉपी शुड बी पास इनटू द आर्गूमेंट्स। तो यहाँ पे जो आर्गूमेंट्स होंगे उन टाइप के आर्गूमेंट्स को क्या बोलते हैं, दैट इज वी कॉल इट एज ए फॉर्मल आर्गूमेंट्स। जब हम b1 की कॉपी यहाँ बनाएंगे, अब b1 की टाइप क्या है, स्ट्रक्ट बुक, तो यहाँ पे भी हम जो फॉर्मल आर्गूमेंट बनाएंगे उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रक्ट बुक, एंड वी आर मेकिंग द अनदर वेरिएबल b। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द टाइप, यहाँ पे टाइप कौन सी है, स्ट्रक्ट बुक। तो यहाँ पे अब b1 के करस्पॉन्डिंग जो भी आपके पास 3 एलिमेंट्स थे, एक तो आपका नेम था, सॉरी बुक नेम था, सो दिस इज द नेम ऑफ द बुक, देन हमारे पास क्या था, ऑथर नेम था, देन कॉल नंबर था। तो यहाँ पे जब हम पास करेंगे तो b1 के करस्पॉन्डिंग, b1 डॉट नेम के करस्पॉन्डिंग उसकी कॉपी किसमें बन जाएगी, b डॉट नेम के अंदर। क्यों, क्योंकि इसकी टाइप भी क्या है, स्ट्रक्ट बुक है, b1 की टाइप भी क्या है, स्ट्रक्ट बुक है। तो जैसे ही यहाँ पे वेरिएबल b क्रिएट करोगे, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू क्रिएट द मेमोरी स्पेस फॉर द एलिमेंट्स b डॉट नेम, b डॉट ऑथर एंड b डॉट कॉल नंबर। तो यहाँ से b1 के करस्पॉन्डिंग जब हम कॉपी पास करेंगे तो b1 के करस्पॉन्डिंग जो नेम की कॉपी होगी किस में पास हो जाएगी, b के नेम के अंदर। सिमिलरली b1 के जो आपका ऑथर नेम है वो किस में कॉपी हो जाएगा, b के ऑथर नेम के अंदर। b1 का कॉल नंबर जो कॉपी होगा किसके अंदर, b के कॉल नंबर के अंदर। एंड देन वी कैन
प्रिंट इट इंडिविजुअल बाय एलिमेंट। सो हमने यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल देखा है जहाँ पे हमने पूरा पूरा एंटायर स्ट्रक्चर भी हम डायरेक्टली पास कर सकते हैं और इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स को भी हम पास कर सकते हैं। नाउ एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये थी कि जब हम यहाँ पे हमने इसको आउटसाइड द मेन फंक्शन स्ट्रक्चर को क्यों डिक्लेयर किया, वाई वी हैव डिक्लेयर दिस स्ट्रक्चर आउटसाइड द मेन और बिफोर द मेन, वाई वी हैव मेक इट एज ए ग्लोबल स्ट्रक्चर। क्यों बनाया हमने ग्लोबल स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर आप देखो जब हम मान लो सपोज मैं इस स्ट्रक्चर को उठा के मेन के अंदर डाल देता हूँ, सपोज दिस स्ट्रक्चर इज इन द मेन, यहाँ पे आपका इस मेन के अंदर है सपोज, दिस इज इन द केस ऑफ ए योर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर है हमारे पास, तो जब हम मेन फंक्शन के अंदर बात करेंगे तो मेन फंक्शन अंदर होने से कोई दिक्कत नहीं है, जब आप डिस्प्ले b1 कॉल करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप फंक्शन की कॉलिंग करोगे, जब आप फंक्शन की कॉलिंग कर रहे हो तो यहाँ पे बाहर आने के बाद क्या आप स्ट्रक्ट बुक को यूज़ कर पाओगे? नहीं यूज़ कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने स्ट्रक्चर को कहाँ डिक्लेयर किया है? मेन फंक्शन के अंदर। जब आप मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रहे हो तो इट बिकम्स द लोकल फॉर द मेन, यानी कि दिस स्ट्रक्चर बिकम द लोकल स्ट्रक्चर फॉर द मेन फंक्शन। तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्ट बुक बनाओगे तो ये क्या देगा? एक एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसको स्ट्रक्ट बुक मिलेगा ही नहीं डेटा टाइप। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो डेटा टाइप कहाँ पे डिफाइन है? मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन है। तो इट विल गिव यू डेफिनेटली एन एरर, दिस इज अनडिफाइंड डेटा टाइप। तो अब आपने इसको करना क्या है? आपने इसको उठा के कहाँ रख दिया? बिफोर द मेन, दैट मीन आउटसाइड द मेन। तो ये क्या बन गया? ग्लोबल स्ट्रक्चर बन गया। दैट मीन्स ग्लोबल बनने के बाद क्या है? ये एसेसिबल है। दैट मीन्स जो आपने ये डेटा टाइप बनाई, यहाँ पे स्ट्रक्ट बुक नाम की डेटा टाइप बनाई, ये क्या है? एसेसिबल है थ्रू आउट द प्रोग्राम। जब ये ग्लोबल बन जाएगा थ्रू आउट द प्रोग्राम, आप यानी कि इसकी करस्पॉन्डिंग वेरिएबल कोई भी क्रिएट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले के अंदर जाके क्या कर रहे हो? स्ट्रक्ट बुक एंड देन बी, आप एक वेरिएबल क्रिएट कर पा रहे हो। अगर आप वैसे क्रिएट करते तो ये एरर देता। तो फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द टाइप स्ट्रक्ट बुक is not known to the function display until the structure struct book is not defined outside the main function. So structure struct book is defined before the main function in this example. So हमने यहाँ पे आई थिंक आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और आई विल ट्राई टू ये प्रोवाइड द नोट्स ऑफ दीज। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियोस में मैं आपको ये नोट्स अटैचमेंट में दूँ ताकि आप लोग नोट्स को पढ़ पाओ। सो ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, यू कैन टेक इट आउट फ्रॉम द लिंक दैट आई विल प्रोवाइड यू इन द फर्दर वीडियो। तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सो लेट अस बी सी विद द रनिंग दिस एग्जाम्पल प्रोग्राम ऑन टू द VS कोड। हम इसको एक बार VS कोड में रन करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ गो टू द फाइल एंड देन क्लिक ऑन द न्यू फाइल एंड देन वी आर गोइंग टू मेक द योर सिंपल कॉन्सेप्ट। वी कैन टेक इट हियर। द name of the file is passing structure, so passing underscore struct dot c. I am giving the location, then create file, then starting with the header file hash include stdio.h. then we need to make here the main function, so integer main. अभी हम दोनों तरीके से देखेंगे। पहले हम जो प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, दैट प्रोग्राम वी आर गोइंग टू क्रिएट विद द हेल्प ऑफ पासिंग इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया? मेन फंक्शन लिया। इन दिस मेन फंक्शन वी आर गोइंग टू क्रिएट हेयर द स्ट्रक्ट बुक। एक हमने एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाई है जिसके अंदर हम 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट वन इज नेम, सेकंड वी आर गोइंग टू टेक द ऑथर, दिस इज ऑथर, देन वी आर गोइंग टू टेक हियर द इंटीजर कॉल नंबर। इस स्ट्रक्चर को हमें क्लोज जरूर करना है, सो वी आर गोइंग टू क्लोज दिस स्ट्रक्चर। Then we are going to take the variable, we are going to create the variable. So struct book b1 equal to
we are going to assign the value here. So we are giving here the learn programming, and then second argument we are going to take the author name. So this is your author name Ajay, and then we are going to take here the third argument. नाउ वी नीड टू कॉल द फंक्शन. तो यहाँ पे हम एक फंक्शन को कॉल करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, डिस्प्ले. एंड मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आप यहाँ पे क्या कहते हैं, जब आप पास करोगे इंडिविजुअल एलिमेंट्स बाय एलिमेंट, तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल का नाम क्या है, b1.name. तो डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करते हैं. देन b1.author, देन b1. कॉल नंबर. तो यहाँ पे हमने तीनों को फंक्शन के अंदर, पैरामीटर के अंदर पास कर दिया. अब हम इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं. सो दिस इज void एंड दिस इज डिस्प्ले फंक्शन. इन दिस डिस्प्ले फंक्शन आई एम जस्ट गोइंग टू टेक हेयर पॉइंटर वेरिएबल, क्योंकि जब आप b1.name पास करें दैट मीन्स यू आर पासिंग द एरे नेम, और जब आप एरे नेम पास करते हो तो दैट मीन्स वी आर पासिंग द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, पासिंग द बेस एड्रेस ऑफ द करेक्टर एरे. तो उसको कौन कंटेन करेगा, दैट विल बी कंटेन बाय द पॉइंटर वेरिएबल. सो वी हैव टेकन इन द पॉइंटर वेरिएबल फर्स्ट वन, देन सेकंड वन, देन वी आर गोइंग टू टेक द थर्ड वन, इंटीजर नंबर. अब डिस्प्ले फंक्शन की हेल्प से हमें डिस्प्ले कराना है तीनों चीज़ को. तो वी आर टेकिंग printf, %s, then %d, then comma, this will be your s, then this will be your t, and this will be your n. एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कंपाइलर को बताना ज़रूरी है कि आप किस टाइप का फंक्शन बनाने जा रहे हो. तो हमें फंक्शन डिक्लेरेशन जरूर देनी है हमें. दिस इज ए void display, and we need to specify here the character array. So this is your character array, this is your character array, then this is your integer. So this is your function declaration. और हमने यहाँ पे integer main लिया है तो हमें return जरूर करना है. So we need to return here, this is your return and 0. The 0 means integer type. It is going to click on the save, and then we need to execute this program. तो यहाँ पे एक हमने प्रोग्राम बनाया है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स को फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं. कंपाइल्ड सक्सेसफुली, यू कैन सी द मैसेज ऑन टू द स्क्रीन एंड देन इट विल डिस्प्ले द आउटपुट. यू कैन सी दैट, बट वी हैव प्रिंट हेयर लर्न प्रोग्रामिंग. सो हमने फर्स्ट आर्गूमेंट को प्रिंट किया, देन अजय एंड देन 101. सो दिस इज द आउटपुट यू कैन सी ऑन टू योर टर्मिनल. दिस इज योर लर्न प्रोग्रामिंग. तो ये आपका बुक का नेम है, दिस इज़ योर ऑथर नेम अजय, एंड दिस इज़ योर कॉल नंबर. सो ये एक हमने प्रोग्राम देखा है जहाँ पे हमने क्या किया, पासिंग इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एलिमेंट. सिमिलरली अब हम पूरा का पूरा अगर हम पास करना चाहते हैं एरे स्ट्रक्चर वेरिएबल, सो हाउ वी कैन पास, और यू कैन कॉल इट एज ए पासिंग द स्ट्रक्चर डायरेक्टली टू ए फंक्शन. सो अगेन वी आर गोइंग टू टेक पास अंडरस्कोर struct डॉट सी, create file. एक important चीज़, that with the each and every video I will try to also attach the codes. मैं वहाँ पे codes भी आपको mention करके दूंगा ताकि आप डायरेक्टली उसको कॉपी पेस्ट करके एंड देन एग्जीक्यूट करके देख सकें. बट इट वुड बी बेटर टू ट्राई इट बाय इटसेल्फ. आप खुद से ट्राई करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा. सो नाउ वी आर मेकिंग अनदर वन, पासिंग द एंटायर स्ट्रक्चर वेरिएबल. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैंने आपको बताया था क्योंकि हमें फंक्शन बनाना है, तो जब आप फंक्शन को क्रिएट करेंगे, एक काम करते हैं हम उस चीज़ को देख भी लेते हैं कि क्या हमारा जब हम स्ट्रक्चर को अंदर डिफाइन करते हैं तो क्या हमारा आउटपुट आता है, क्या वो कोई एरर देता है या नहीं देता है. और फिर हम स्ट्रक्चर को मेन फंक्शन से ऊपर डिफाइन करेंगे, नहीं दैट मीन आउटसाइड ऑफ द मेन फंक्शन, ताकि वो ग्लोबल स्ट्रक्चर बन जाए. देन वी विल सी कि कैसे है. लगता है हमने फाइल का नेम गलत सेव कर दिया, .c. वन प्रॉब्लम इन दिस फाइल, व्हाट प्रॉब्लम इट इज शोइंग.
expected the terminator. Then we need to take here the integer main. No error is there. So this is your integer main. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्ट बुक. दिस इज स्ट्रक्ट बुक एंड इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 3 एलिमेंट्स दे रहे हैं. द फर्स्ट एलिमेंट इज करेक्टर नेम 25. We are declaring here the character name array. Similarly, another element character author. So this is your character author we have declared. Now we are taking here the third element integer call number. Now we need to close the structure. This is structure I have closed. Then we need to call the function. So the function name we are taking here the display. So this is your display. Now what we need to pass? We need to pass here the variable, the entire structure variable. So we need to create here the structure variable. How we can create? First of all, data type. This is your struct, then book, then we are going to create b1 and passing here the same book names. For this is book name is learn programming. Then we are going to pass the author name. So this is your author name. Then we are going to pass your call number. So now display के अंदर हमें कॉल करना है. अब मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा था कि जब हम यहाँ पे एंटायर स्ट्रक्चर को पास करेंगे b1 को, तो जब हम वी आर पासिंग द b1 एंड देन फंक्शन विल बी कॉल द पैरामीटर कॉपी. इसकी जो ये पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड एक्चुअल आर्गुमेंट. दैट आर्गूमेंट मस्ट बी पास टू द फॉर्मल आर्गूमेंट्स. तो और जब फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, अगर हम आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, सो दिस इज योर डिस्प्ले एंड देन यहाँ पे जो ये जब एक्चुअल आर्गूमेंट की कॉपी बनेगी फॉर्मल आर्गूमेंट्स में, तो वो किसके अंदर बनेगी, क्योंकि जो b1 की टाइप है, b1 की टाइप क्या है, स्ट्रक्ट बुक. तो यहाँ पे जो टाइप होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्ट बुक. सो दिस विल बी स्ट्रक्ट book. I am taking here the b. Now here we need, because the copy will be passed here the b1 to b, so you can see that यहाँ पे एक error दिखा रहा होगा, incomplete type is not allowed. क्यों? क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, ये रिकोनाइज नहीं कर पा रहा. क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रक्चर को कहाँ डिफाइन किया है, इनसाइड द मेन. अब ये क्या एक तरह से लोकल स्ट्रक्चर है. तो लोकल स्ट्रक्चर एक तरह से देखा जाए तो लोकल स्ट्रक्चर का स्कोप कहाँ तक हुआ, इस ब्रेसिस से लेके इस ब्रेसिस तक. दैट मीन्स अगर हम इसके बाहर अगर हम स्ट्रक्ट बुक को लिखेंगे तो ये क्या दिखाएगा, अनडिफाइंड, इनकम्प्लीट टाइप. तो इसलिए हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर को उठा के क्या करना है, आउटसाइड द मेन डिक्लेयर करना है. जब हम आउटसाइड द मेन डिक्लेयर करते हैं दैट मीन्स इट बिकम्स ग्लोबल स्ट्रक्चर. ये क्या बन गया, आपका एक ग्लोबल स्ट्रक्चर बन गया. नाउ यू कैन सी दैट द एरर हैज़ बीन रिमूव्ड ऑटोमेटिकली. यहाँ पे एरर रिमूव हो गया. अब आप देख सकते हो क्योंकि ये रिकोनाइज कर रहा है स्ट्रक्ट बुक को. तो जैसे हमने ग्लोबल किया तो ये स्ट्रक्ट बुक का एक डेटा टाइप क्रिएट हो गई है. इसको हम डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं. नाउ दिस इज वॉइड डिस्प्ले एंड देन we are going to take here the printer statement to print the elements one by one. So this is slash n, then percentage s, then percentage d. इनमें हम स्पेसिंग दे देते हैं ताकि अलग से आउटपुट नज़र आए. स्लैश टैब स्लैश टी. then we need to print the elements. So b dot हमारे पास नेम है, then b dot author, then b dot call. Now integer main we have taken, so it must return integer type value, so it is returning 0. Now save this program and then execute it. यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर पूरा एंटायर स्ट्रक्चर वेरिएबल को पास किया है. तो हम इसे बोलेंगे एक तरह से वी आर पासिंग द एंटायर स्ट्रक्चर. ये एक एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कंपाइल सक्सेसफुली, शोइंग कंपाइल सक्सेसफुली, वी हैव नॉट टेकन हेयर द डिस्प्ले. तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले लिया है, बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है. दिस इज डिस्प्ले एंड दिस इज डिस्प्ले, परफेक्ट. द फंक्शन नेम इज सेम. सो नाउ यू कैन सी दैट द आउटपुट इज, इट इज़ प्रिंटिंग बी डॉट नेम. तो यहाँ पे हम आउटपुट देख लेते हैं. दिस इज b dot name means it is containing learned programming.
then author name Ajay, and then finally it is printing 110 call number. सो यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट किया है. सो दिस वाज आवर टॉपिक एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ योर पासिंग स्ट्रक्चर टू ए फंक्शन. तो हमारे पास दो वेज हैं जिसके थ्रू हम पासिंग कर सकते हैं. पासिंग इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स और पासिंग द एंटायर स्ट्रक्चर वेरिएबल इन वन को. So if you have any doubt related to this video और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो you can also give the comments in comment section and I will definitely reply to these comments. So I think it's enough for today, and in the next lecture we will discuss about the next topic, and that is your structure pointer. Thank you.